सेफ वेस्ट इंडिया 2023 ने भारत के लिए नए सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों का अनावरण किया। भारत की अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया ने सिक्योरिटी एंड फायर एक्सपो वेस्ट इंडिया सेफ वेस्ट इंडिया के पहले संस्करण का भव्य उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा क्षेत्र के प्रमुख उत्पादकों को एक मंच पर लाना एवं शहरों और संगठनों की सुरक्षा के लिए नए जमाने की चुनौतियों का पता लगाना है। मुंबई के गोरेगांव में स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 18 से 20 मई तक आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक विजिटर्स एवं 75 से अधिक ब्रांडों ने भाग लिया है। इस सिक्योरिटी एंड फायर एक्सपो के उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर रुक्मणी कृष्णमूर्ति, पूर्व निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार और शैक्षणिक परिषद सदस्य, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गृह मंत्रालय, गुजरात, कैप्टन संजीव तिवारी, ARVP, SIS इंडिया वेस्ट रीजन, श्री विनय खंडूरी, CPP, CFE, मुख्य सुरक्षा और सतर्कता, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, कैप्टन राजेश शर्मा, संस्थापक और बोर्ड सदस्य, ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विसेज, श्री योगेश मुद्रास, प्रबंध निदेशक, इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया और श्री पंकज जैन, वरिष्ठ समूह निदेशक और डिजिटल, इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया इनकी प्रमुख उपस्थित थी। Hello, I am Dr. Rukmini Krishnamurthy. I am a forensic scientist for last 50 years, worked in government forensic laboratory, handled high profile case like 93 blast, 2611 attack, Telgi case and all. Right now, I am chairperson of Helic Advisory. We do forensic work for government, public sector and corporate. So this is the first time authentic forensic laboratory is there, which is giving forensic services to all the corporate and industry. As all of us know, corporate and industry have lot of in-house problems, theft and disputes. But they shy out to go to police and register the case. So our laboratory help them out in cases of dispute and in-house threat, how forensically they can handle it and save their working and lot of losses which can happen. Right now, government has come up with encouraging forensic in every sector of the society so that there is not loss and anything which is done in an authentic way. Our reports are admissible in the court of law and hence any legal issues also can be handled. As I said in my talk, there have been many industry cases which we have solved by using all forensic technique right from lie detectors and all. We also have behavioral testing so that during the appointment you can do the behavioral testing and gene typing to understand how the person is. Like in any of the industry, if the person is not of good character or the integrity, in the top position, the losses are very heavy. So this type of I'd like to felicitate Mr. Ashish Thakur, MD and CEO, Prama Hikvision India. Please join. Thank you all so much. One second, please. Let's have a big round of applause, please. Hi, my name is Ashish P. Dhakan. I am Managing Director and CEO of Prama Hikvision India Private Limited and one more organization called Prama India Private Limited. And we are here at SEP West India and we represent CCTV and surveillance industries in India. And I feel that surveillance industry has still amazing growth rate and
good growth potential in India as a market, and particularly West by seeing the GDP ratios of industry. About our company, we are, we have established as a Prama brand in 2005 and grown since last 18 years. And since last 2005 to 2008 and 2008 we have done joint venture with Prama and Hikvision and established one company called Prama Hikvision. And in 2018 we have started Make in India initiative, and right now we have a very state-of-the-art manufacturing facility in India, within India, which is near at Vasai, and which is we are thankfully instrument to give empowerment and employment of more than 2,500 to 3,000 people in India, direct and indirect employments. And more than 75% of the products we manufacture right now, what all we sell, we manufacture in India only. So, and I wish good luck to SAFE India, SAFE West, and SAFE West is being organized by Informa Media Publications, and Informa Media is also doing one very nice show, our industry flagship show, IPSEC India, which is in Delhi. And I consider IPSEC India as Kumbh Mela of security industries, okay, which is happening every year on year. And I would like to invite everybody who all are interested about latest technologies and trends in security industries. You must visit IPSEC India, which is happening in December. Thank you. वेलकम करता हूँ। ये हमारा न्यू इनिशिएटिव है फॉर कमर्शियल सिक्योरिटी सेगमेंट, सेफ वेस्ट। सिक्योरिटी सेगमेंट में हम लोग ये मोर देन 15 साल से है। हमारा इफ्सेक करके शो हो रहा है जिससे 15 साल कंप्लीट किया, वो दिल्ली में होता है। वो अभी साउथ एशिया का सबसे बड़ा शो है। और एक हम चेन्नई में शो करते हैं जो पिछले 8 साल से हो रहा है। ये मुंबई में हम लोग पहली बार आए और हमको जो एनॉर्मस सपोर्ट मिला है इसके लिए हम लोग एग्जिबिटर्स और ये पूरा इंडस्ट्री के बहुत थैंकफुल है। अराउंड 75 ब्रांड्स लोकल एंड इंटरनेशनल एग्जिबिट कर रहे हैं। 5000 से ज़्यादा ट्रेड विजिटर्स आने वाले हैं। ये 3 दिन का शो है जो नेस्को एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में हो रहा है। सो एनीबडी हु इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन टू द सिक्योरिटी इंडस्ट्री, कमर्शियल सिक्योरिटी, आज नए नए इनोवेशंस देखने मिलेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे, उनके डेमोज हो रहे हैं, लाइव डिस्प्लेज हो रहा है। सो प्लीज़ आके देखिए, और अगर आपका वो एरिया में इंटरेस्ट और बिजनेस है तो प्लीज़ आप यहाँ से डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिल सकता है ये शो में। थैंक यू। इंडिया से तो डेफिनेटली बहुत है, बिकॉज आज सिक्योरिटी ये सेगमेंट ही बहुत बड़ा है। $2.5 बिलियन का इंडस्ट्री है जो 25 से 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि एक छोटा कैटलिस्ट है जो इंडस्ट्री को ये बढ़ाए। और बिकॉज आज मोस्ट ये डिमांड जो आ रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, और ये उसको कैटर करने के लिए शो बनाया गया है। डेफिनेटली, बिकॉज आप देख रहे हो आज ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क बहुत बढ़ रही है। हर जगह पे कुछ ना कुछ थ्रेट है। सो गवर्नमेंट ने भी उस पर इनिशिएटिव दिया है, सेफ सिटीज़ डिसाइड की हुई है। तो आज इसीलिए CCTV हो, एक्सेस कंट्रोल हो, बायोमेट्रिक्स हो, ये सारे नए नए प्रोडक्ट्स आज हमारे लाइफ में एक पार्ट बन गए हमारे। और हमको भी वो अनयूजुअल नहीं लगता। आज यहाँ पे भी बैठे, हमारे यहाँ पे आजू बाजू कितने सारे कोई जाओ CCTVs होते ही है। सो ये एक है, बिकॉज हमारे लिए है कि हम सेफ रहे, सिक्योर है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, कुछ रिस्क हो, वो पहले डिटेक्ट हो जाए। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे भले के लिए ही है। नहीं, सो एक्चुअली ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने तो सेफ सिटीज़ ही डिक्लेयर की है। सो आज देखेंगे तो देर आर अबाउट आई थिंक नेक्स्ट 2-3 साल में, अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र देखूँ तो वेस्टर्न इंडिया में कम से कम आई थिंक 5 करोड़ कैमराज आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। सिमिलरली ऐसे पूरे पैन इंडिया इंस्टॉल होने वाले हैं कैमरा। सो ये गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी पुटिंग अ बिग पुश ऑन द सिक्योरिटी एलिमेंट। सिमिलरली आज प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट्स में सिक्योरिटी है, मॉल्स में जा रहे हो सिक्योरिटी है, आज गेटेड कम्युनिटी स्टोर्स में सिक्योरिटी है। और ये हर जगह पे अभी ग्रो हो रहा है, नॉट ओनली मेट्रोज, अभी वो B टायर सिटीज़, C टायर सिटीज़,
वहाँ पे भी वे सिक्योरिटी एलिमेंट आया हुआ है, तो वहाँ पे भी कॉन्शियसनेस आ गया है। आज देखो आप छोटे पान वाले के दुकान पे भी एक CCTV रहता है। सो आई थिंक पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ सिक्योरिटी, दे डोंट वांट टू हैव सम रिस्क। सो एक हिसाब से, और वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बन गया अभी। इट हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल। जैसे आप घर पे आप टेलीविज़न लेते हो, अभी आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हो, वैसे एक CCTV भी एक प्रोडक्ट बन गया आपके सोसाइटी या आपके इसमें।